Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is getting to know plants. This chapter is in biology. In the last video lecture, we understood about root system and shoot system. We understood about the plant parts, okay, which is categorized mainly into two types, that is root system and shoot system. Root system consists of roots only, okay, means the plant part uh, which is under the ground, okay. So such part is known as root part, and the plant part which is above the ground, it is considered in a shoot part, such as stem, leaves, flowers, fruits, birds, seeds, etc. So this is the basic thing. Firstly, we understood about the root part in the last video lecture, that root means what? The non-green plant part which grow under the ground, okay, and absorb water and minerals and hold the soil firmly. So such kind of plant part is known as root. Understand? Now, root is having mainly two types. First one is taproot and second one is fibrous root. Taproot means what? Taproot means the plant root which has one main root, and from that the other branches like structure, or should I say the main root, from that the lateral roots comes out or lateral roots arrives, are known as taproot. मतलब कि रूट का एक टाइप है जिसके अंदर एक मेन रूट होता है, और वो मेन रूट में से छोटी छोटी शाखाएं और शुड आई से ब्रांचेस निकलती है, वो ब्रांचेस को हम बोलते हैं लेटरल रूट्स. So such kind of root is known as taproot. Then we understood about fibrous root. Fibrous root means what? That in that there is no main root. मतलब उसमें टैप रूट जैसा कोई भी एक मेन रूट नहीं होता है. उसमें all the roots are seems similar and having fibrous structure. मतलब कि सारे सेम जैसे दिखते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइबरियस, मतलब थिन स्ट्रैंड्स जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. So such kind of roots are known as fibrous root. Then we go through the examples also, that for example tap root hai. So tap roots example is rose, then petunia, then carrot, radish, turnip, etc. While the example of fibrous root, coconut tree, date tree, then grass, maize मतलब मक्काई, corn जिसको हम बोलते हैं. So these are the banana also. So these are the examples of fibrous root. So up to this we have completed. Now today in this video we will complete the function of the root. हम समझेंगे function of the root. Root का main function plant में क्या है? So let's get start. So over here total 4 functions are given to you. So first I will start with the first one, that roots anchor the plant to the soil. मतलब जो भी रूट्स होते हैं वो प्लांट को खड़े रखने का या सॉइल में फिक्स रखने का काम करता है. ओके, फॉर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग. हम लोग दो प्लांट ले लेते हैं. एक प्लांट को हम पॉट के अंदर अच्छे से बरीड करके नॉर्मल प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. अब हम दूसरा लेते हैं प्लांट, उसको हम जमीन के अंदर बरीड नहीं करेंगे, जस्ट सॉइल के ऊपर ऐसे ही रख देंगे. ठीक है. नाउ वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व इट फॉर सेवरल डेज ऑफ 4 to 5 days. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल ऑब्जर्व कि जो प्लांट सॉइल के अंदर हमने बरीड नहीं किया है, वो प्लांट हवा की वजह से, पानी की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से अपनी जगह से हिल जाता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन वो अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सॉइल के अंदर फिक्स नहीं है. अगर सॉइल के अंदर वो फिक्स नहीं होगा, सो उसको वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? सो ड्यू टू दैट रीजन वो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. एंड जो प्लांट जिसको हमने सॉइल के अंदर बरीड करके रोज पानी प्रोवाइड कर रहे थे, वो प्लांट अच्छे से सॉइल के बीच में अच्छे से खड़ा रह पाएगा एंड अच्छे से फ्यूचर में ग्रो होगा.
सो दिस प्रूव्स द फंक्शन ऑफ द रूट. ये रूट का फंक्शन समझा रहे हैं कि रूट्स एंकर, एंकर का मतलब होता है फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. सेकेंड एग्जाम्पल लेट मी गिव यू, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो. आपको पता है स्टीमर्स होती है, बड़ी बड़ी स्टीमर्स जिसका काम है टू ट्रांसपोर्ट द लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, साथ साथ में समटाइम्स बड़ी सी क्रूज होती है, क्रूज मतलब शिप, जिसके अंदर गुड्स तो जाता ही जाता है लेकिन साथ साथ में कुछ लोग उसमें सफर करने के लिए भी जाते हैं. सो ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स को जब हम लोग पोर्ट के ऊपर पार्क करते हैं, जब पोर्ट के ऊपर लैंड करवाते हैं, सो एट दैट टाइम आपको पता है कि अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया वहां पे, सो माइट बी पॉसिबल कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही चली जाएगी और वो पोर्ट के ऊपर स्टेडी नहीं रहेगी. लेकिन अगर हमने, जब वो पोर्ट के ऊपर आए और हमने एक एंकर जैसा स्ट्रक्चर आता है, आपको पता है. सो लेट मी शो यू कैसा होता है, ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. सो ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम एंकर ऑफ द शिप बोलते हैं. सो इसको पानी में डाला जाता है, ये होता है बहुत हैवी, बहुत बड़ा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको पानी में डालने की वजह से ये आयरन की चीज है और बहुत भारी है, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी. और वो साथ साथ में वो स्टीमर को भी दूसरी कई जगह पे जाने में नहीं हेल्प करेगी, मतलब वो रिस्पेक्टेड पोर्ट के ऊपर अच्छे से खड़ी रहेगी. ओके, सो इसको हम एंकर बोलते हैं, जिसका काम है स्टीमर को एक जगह पे फिक्स लगाए रखना. सो सेम वे रूट्स भी क्या है, एक तरह के एंकर है, प्लांट के एंकर है, जो सॉइल के अंदर रूट प्लांट को अच्छे से फिक्स करके रखते हैं, सीधा खड़े रखते हैं. क्लियर? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट. नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट, रूट्स टेक water and minerals from the soil. So roots का मेन काम क्या है, एक तो सॉइल में अच्छे से उसको फर्मली होल्ड करके रखना, जिसकी वजह से प्लांट अपराइट स्टैंड रहे. सेकेंड फंक्शन मेन है, दैट इज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, जैसे हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, water and roughage, these are the most essential things which we required for our growth, getting energy and further life processes. So same way roots के लिए भी plants के लिए भी बहुत सारी चीजें important है, जैसे कि minerals and water. So minerals and water, ये दोनों चीजें उनको soil में से मिलती है. Soil consisting of some most important minerals, for example NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन चीजें मिनरल्स के, इनको हम मिनरल्स बोलते हैं. सो ये सारी चीजें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है. सो ये चीज प्लांट को विद द हेल्प ऑफ रूट्स एब्जॉर्ब करने को मिलती है, एंड फिर रूट्स है उसको बाकी के प्लांट पार्ट में उसको भेज देता है. सो मिनरल्स एंड वाटर लाइक दिस वे रूट्स है वो एब्जॉर्ब करता है एंड पास करता है टू रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स. सो ये उसका सेकेंड फंक्शन हुआ. थर्ड इज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टूगेदर, thus soil erosion is prevented. For that let me explain you one thing. आप एक दो take two cardboards. Okay, in the first cardboard what you have to do, you have to just pour the soil inside it and keep it aside. And in second one what you have to do, you have to just spread the soil firmly, very nicely, then put it some seeds inside it and daily provide water, fresh air and sunlight. Slowly and gradually from that box small grasses comes out. Okay, now we have to do the activity. Now firstly take a table fan, okay, and keep that first box which is completely empty, just soil is there. So now just switch on the fan and keep that box in front of the table fan. What will happen, all the soil will going to blow away, मतलब उड़ जाएगी, soil है वो box में से उड़ के नीचे गिरेगी. नाउ टेक सेकेंड बॉक्स जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रास है वो अच्छे से ग्रो किया हुआ है. सो नाउ
just take and put it in front of the table fan and just switch on the table fan. So you will observe that compared to the first box, the soil which has been going to blow away is very less. Okay, soil बहुत कम उड़ती है और कम वो बॉक्स में से उड़ के नीचे गिरती है. So this proves that soil erosion जो पहले बॉक्स में हुआ वो विंड की वजह से क्या हुआ, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. ओके, सॉइल के लेयर्स होते हैं. ऊपर की सॉइल जो हम देख सकते हैं उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं. फिर बीच में जो सॉइल होती है, सॉइल का लेयर होता है, उसको हम सब सॉइल बोलते हैं. फिर नीचे जो होता है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं. सो जो ऊपर का जो सॉइल लेयर है, टॉप सॉइल, वो अगर हवा की वजह से या पानी की वजह से या किसी और वजह से अगर निकल जाए या धुल जाए, सो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. ओके, सो रूट्स का काम क्या है, प्लांट्स के रूट्स का काम है सॉइल के पार्टिकल्स को अच्छे से जकड़ के रखने का. ओके, सो जकड़ के रखने की वजह से क्या होगा कि ये सॉइल के पार्टिकल्स जोर से हवा आए या फिर जोर से पानी है वो जगह से अगर पास ऑन हो, सो वो क्या करेगा, वो सॉइल पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़ के रखेगा और वो सॉइल पार्टिकल्स धुल नहीं जाएंगे, इरोड नहीं हो जाएंगे. सो दिस इज नोन एज प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल इरोजन. सो रूट्स है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज कोई भी प्लांट के लिए टॉप सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अच्छी चीजें होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. सो इसलिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना जरूरी है, जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लांटेशन. नेक्स्ट वन इज, इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, फॉर एग्जाम्पल कैरेट. ओके, अब कुछ जिसको हम हिंदी में कंद बोलते हैं. ओके, सो कुछ चीजें होती है जो प्लांट के नीचे ग्रो होती है. जैसे कि अभी मॉनसून सीजन चल रही है तो आपको पता है कि आप गरम गरम रोस्टेड मूंगफली, पीनट्स, ओके, वो खाते हैं. तो वो क्या है, एक टाइप का फूड है जो रूट के अंदर स्टोर्ड होता है. सेम वे फॉर द कैरेट के अंदर भी, या रेडिश, ये देखो यहाँ पे. सो इसका रूट ऐसा मोटा वाला क्यों है और इसका क्यों ऐसा है, रीजन इसका ये है कि रूट्स का ये जो टैप रूट है उसके अंदर जो प्लांट का रिमेनिंग फूड है वो उसमें स्टोर्ड है. ओके, सो अगर हम गाजर खाते हैं मतलब क्या, कि प्लांट का स्टोर्ड फूड खा रहे हैं. अंडरस्टूड. सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर रूट्स है वो फूड स्टोर करते हैं. ओके, सो ये सब इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केस जिसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे गाजर, कैरेट. ओके, रेडिश मतलब मूली, टर्निप को बोलते हैं हम लोग शलगम. ओके, वो ब्यूटीफुल छोटा सा मूली जैसा दिखता है, थोड़ा पर्पल कलर जैसा होता है और नीचे व्हाइट कलर का होता है. सो ये कुछ रूट्स ऐसे हैं जो फूड को स्टोर करते हैं. सो लाइक दिस वे वी हैव गो थ्रू द ऑल 4 फंक्शंस ऑफ द रूट. पहला है प्लांट को फिक्स करना सॉइल के अंदर एंड हेल्प करना टू स्टैंड अपराइट. सेकेंड वन है एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स. थर्ड वन है सॉइल के पार्टिकल्स को अच्छे से फर्मली होल्ड करके रखना ताकि कोई भी सॉइल इरोजन ना हो. और चौथी चीज है दैट इज प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर रूट्स के अंदर फूड है वो स्टोर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. ओके, सो ये हो गई हमारी पढ़ाई खत्म. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टू ऑब्जर्व वन एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी करनी है. इन दैट एक्टिविटी लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू. हम ये एक्टिविटी में क्या प्रूव करना चाहते हैं, हमें ये बताना है कि रूट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर. ओके, सो ये समझने के लिए आपको कोई भी 2 ट्रांसपेरेंट वेसल चाहिए. वेसल मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट बर्तन. ओके, सो मैंने ये 2 बर्तन ले लिए है, बीकर ले लिया है. यहाँ पे मैंने बीकर लिया है. आपके घर में कोई भी ट्रांसपेरेंट वेसल हो आप ले सकते हो, बट मेहरबानी करके कांच की चीज मत लेना. ओके, अच्छा, सो अब मुझे इसमें क्या करना है कि पहला वाला ये पहला वाला वेसल है, उसमें मैंने क्या किया है, पानी भर दिया है हाफ तक और वहां पे ऐसे मार्कर से मार्क कर दिया है वो वेसल के ऊपर कि यहाँ तक मैंने पानी भरा है. फिर क्या करना है,
उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का लेयर डाल देना है, मतलब उसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देना है। वंस इट इज डन, देन उसके अंदर में एक छोटा सा प्लांट है, वो रूट्स के साथ ऐसे होल्ड करवा दो। ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा बीकर लेना है और उसके अंदर भी जितना पानी इसमें था उतना ही पानी आपको इसमें भी लेना है और ऐसे वाटर से मार्क कर देना है कि यहाँ तक मैंने लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद इसको ऑब्जर्व करना है। सो 2 दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो लेवल जो यहाँ तक था, नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व के उसका लेवल है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके। एंड जो पानी दूसरे दिन यहाँ पे हमने कुछ प्लांट वांट नहीं डाला था, तो यहाँ का पानी जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं होगा। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि यहाँ पे प्लांट में रूट्स थे और रूट्स ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब किया। एंड ड्यू टू दैट रीजन पानी का जो लेवल, ये पहला लेवल है, ये पहला था पहले दिन का, और फिर 2 दिन के बाद जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है। सो विच प्रूव्स दैट सम सॉर्ट ऑफ इतना पानी है, थोड़ा सा कुछ ml ऑफ वाटर है, वो रूट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया एंड रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स को पहुंचाया। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट यस, रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके ओके, ये हो गई हमारी लर्निंग आज की कंप्लीट। अब आपका टर्न है एंजॉय करने का, दैट इज क्विज टाइम। ओके, मैं आज क्या करूंगी, पुराने दिनों को हम याद कर देते हैं। हम बचपन में बहुत सारे जंबल वर्ड्स खेलते थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्टिविटी विच इज हैविंग जंबल वर्ड्स। ओके, टोटल 6 है। अब ये 6 या तो मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को मिला के टोटल 6 है। अब आपको इसको सॉर्ट आउट करना है और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। जिसके सारे के सारे सही होंगे, they will get their name in the next video lecture. Okay, so are you all ready? Okay, so I am giving you over here WIKICINUPWIKIMP अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपको मुझे आंसर देना है इनसाइड द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर योर आंसर। देखते हैं किसके सारे के सारे सही आते हैं। ओके, in the next video we will learn something new, we will learn another plant part. Till then just keep smiling. आपके नियर बाय के ग्रीनरी को एंजॉय करो, थोड़ा बहुत घूमो, उसको ऑब्जर्व करो, ओके, एंड नेचर को चेरिश करो। Keep smiling. Have a nice day. Bye.